Hello, everybody. Welcome back to my YouTube channel. That is a BS entrance exam by our coach Bakul Hanspal. This is Bakul Hanspal, the founder and the CEO of this very edtech startup. And today ये वीडियो होने वाली है about part 2 of tones. तो अगर हमने पहला वाला part नहीं देखा तो I would strongly suggest you to watch this. It's there on the I button. तो आप वहां पर जाकर देख लीजिए. क्योंकि देखिए ये पूरी की पूरी सीरीज is a full-fledged 70 टोन सीरीज. तो यहाँ पर हम 70 टोन्स को कवर करने वाले which is I would say way more than that of what any coaching institute actually teaches. Along with tones, we are going to do their respective synonyms also. So it's even more than 70. Right? So if you're preparing for CLAT, ALET or any other law entrance exam for that matter, or any other comparative exam जिसमें टोन्स पूछी जाती हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन या फिर इंग्लिश सेक्शन में, तो ये वीडियोस बहुत ज्यादा आपकी रेलेवेंट होने वाली है. तो एक बार आप पहला वीडियो भी जाकर देख लीजिए या फिर इसके बाद देख लीजिएगा. वीडियोस आर नॉट इंटरकनेक्टेड दैट वे. Fine. So let's get started with this. Yes. So we have to do from conciliatory. Diplomatic, we did it in the last class. Conciliatory is when you're establishing a kind of conciliation. दो parties है, दोनों एक दूसरे से रूठी हुई है. Somehow उनके बीच में वो gap को bridge कर रहे हो. Somehow उनके minds को in sync पहुंचा रहे हो. That is calm, soothing, peaceful. Right? So that's when conciliatory tone is used. Let's not argue, we can find a solution together. That is conciliatory tone. Calm, reassuring, soothing, peaceful, all are examples. अब मैं ये आपको पिछली भी वीडियो में बोला था. I think you should watch the first video first because it actually makes a lot of sense. Because मैंने जो bedrock है काफी थोड़ा थोड़ा काफी जो अभी भी मैं लिंक करने वाली हूँ वो मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया. तो एक बार आप पहली वीडियो भी जाके देख लीजिए. देखिए जैसे अब मैंने आपको सिनोनिम्स का बताया था. पीसफुल इज नॉट समथिंग विच कंप्लीटली मैचेस विद कंसिलिएट. इट मैचेस इन सम वे बिकॉज कंसिलिएशन इज अ प्रोसेस विच इज यूजुअली डन पीसफुली. Peaceful could also mean something else. It could be a part of reflective tone as well. It could be a part of lyrical tone as well. Right? Soothing and again reassuring. Reassuring definitely matches with conciliatory. So remember this word by heart. Calm भी थोड़ा थोड़ा match कर रहा है, but again mostly it depends on the overall essence of the passage. Defensive. Like, you know about defensive people? People who cannot accept blames. People, of course, they try to do something, they try to defend themselves each and every time. That is when defensive tone is used. When people are protective, when they want themselves to feel protected because they cannot actually tolerate or suffer वो जो blames उनके ऊपर bombard करे जा रहे हैं. They have a habit of justifying each and everything. They're guarded. Guarded is somehow similar to that of protective and sensitive as well. So you होते defensive tone. I did not mean it in that way. You misunderstood me. So in that case, you were wrong at your fault. You could not handle that particular blame which was there. You are being defensive. This is when defensive tone is used. एग्जाम्पल ऐसा नहीं आएगा अगेन क्वेश्चन. दीज टोन्स जो अभी हम कर रहे हैं देयर आर सम अनकन्वेंशनल टोन्स एंड देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ अनकन्वेंशनल टोन्स एक्चुअली बीइंग टेस्टेड इन योर एग्जाम. यूजुअली कन्वेंशनल ही आएंगी. कन्वेंशनल क्या है? डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, एनालिटिकल, फैक्चुअल, ऑप्टिमिस्टिक या फिर सैंग्विन, नॉस्टैल्जिया, इंट्रोस्पेक्टिव टू सम एक्सटेंट, है ना, and paradoxical, ironic. These are unexplanatory. These are very conventional tones. बाकी सब तो देखो टोन्स एक ऐसा टॉपिक है 70 टोन्स पे कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे. टोन्स एक ऐसा टॉपिक है जो आप एक्चुअली में डिराइव कर रहे हो. सो इट्स अ पार्ट ऑफ योर वोकैबुलरी. वो टोन ऐसा नहीं होगा कि हो सकता है कि 70 से ऊपर कोई और आ जाए. Our tone basically means the mood of the author at that point of time, right? When he is explaining the passage, what is the mood of the author? What is flow or the I would say the flow of the belief throughout which the passage is being written. तो वो क्या है? उसको बोलते हैं टोन. तो वो कुछ भी हो सकता है. वो कोई भी वोकैबुलरी का वर्ड हो सकता है. वो कोई भी वोकैबुलरी का वर्ड हो सकता है जो मूड एक्सप्लेन कर रहा है. राइट? तो वो जाएगी टोन. ठीक है. Next, wistful. Wistful is feeling gentle sadness while remembering something happy. It's again, you are remembering something, a past event, and you are feeling a little bit sad about it, right? कि वो चीज अब क्यों नहीं हो रही है? That's a part of wistful. So again, ये nostalgia में आ गया, ये melancholic में आ गया, ये yearning में आ गया. Not thoughtful exactly. ठीक है. तो she smiled faintly thinking about her school days, right? जिसमें थोड़ा सा उसको sadness हुआ और happy थे वो स्कूल के दिन. दिस इज विस्टफुल टोन. देन अर्जेंट. अर्जेंट होता है व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग अर्जेंसी, क्रिटिकल, प्रेसिंग, इमीडिएट, इंपॉर्टेंट. दिस इज अर्जेंट टोन. कॉल द डॉक्टर, इट्स एन इमरजेंसी. दिस इज अर्जेंसी. अब देखो ये जो 70 टोन्स का जो पावर पैक है ना, इट इज नॉट जस्ट माइंड कि भाई
बकुल मैम उठा के ले आई है चीजों को। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने टोन्स को कंपाइल कर लिया, आई एम एक्सप्लेनिंग दोस, इवन माय स्टूडेंट्स हैव आल्सो सेंट अ कपल ऑफ टोन्स एंड वो भी इस पीडीएफ में कंपाइल है, पीपीटी में। सो टिल हियर जो मेरे टिल द 24th टोन, यहाँ तक मेरे स्टूडेंट्स का कंपाइलेशन था, ठीक है, टोन्स का। उसके जो जो मैच नहीं हो रहा था मेरी पीडीएफ से, बाकी इसके बाद का मेरा खुद का है, विच इज वेरी कन्वेंशनल, विच इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अदरवाइज ये जो थोड़ी थी, थोड़ी अनकन्वेंशनल थी, बट अगेन देयर आर पार्ट ऑफ टोन्स ओनली, सो आई डेल्ट विद दोस। फाइन, नॉस्टैल्जिक पढ़ चुके हैं बहुत बार अब। तो आपको विस्टफुल इज वन ऑफ देम, देखो रिपीट हो रहा है, मैंने बताया ना सिनोनिम्स में कि दिस इज वेरी कन्वेंशनल, ये तो आने के चांसेस काफी हैं इसके। रेमिनिसेंट is one of them. Sentimental is one of them. When you're remembering the past with affection, the faint smell of chalk and the sight of the old playground brought back the warmth of carefree child days. ठीक है, दिस इज नॉस्टैल्जिक। तो इट इज अगेन विस्टफुल, हमने अभी पढ़ा है। रेमिनिसेंट रिमेंबर कर लो वोकैबुलरी वर्ड, सेंटिमेंटल वोकैबुलरी वर्ड। रिमेंबर दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टोन, आई डोंट थिंक सो देयर कुड बी एनीथिंग more important than this particular word, right? Anyway, critical, a very very important word, very conventional tone when you're pointing out the faults and flaws। देखो critical ना usually दो चीजों में होता है। when I was preparing for my CLAT back then, I was always confused about critical tone। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता था कि लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर पैसेज में किसी पर्टिकुलर चीज के नेगेटिव्स डिस्कस करे जा रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज कोई मैंने टॉपिक उठाया, उसके नेगेटिव्स डिस्कस हो रहे हैं, क्या वो टोन होगी? और मान लो क्रिटिकल टोन होगी, या फिर कोई पर्टिकुलर पैसेज है जहां पर ऑथर सीवियरली किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है, क्या वो टोन होगी क्या? मेरे को ये लगता था कि क्रिटिकल में कौन सी टोन होगी, ये तब होगी जब ऑथर क्रिटिसाइज कर रहा है किसी पॉजिटिव चीज को, या फिर जब ऑथर नेगेटिव चीजें गिनवा रहा है किसी पर्टिकुलर चीज की। दोनों ही जो चीजें हैं वो क्रिटिकल टोन में आएंगी एट एनी कॉस्ट। दोनों ही चीजें, मैं रिपीटिंग दिस, क्रिटिकल टोन में आएंगी, चाहे आप किसी पॉजिटिव चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हो या फिर चाहे आप किसी चीज के नेगेटिव्स गिनवा रहे हो, वो सब क्रिटिकल में आएगा। ठीक है, सिनोनिम्स में जजमेंटल मैंने पहले भी बोला है, सॉरी एनालिटिकल, एनालिटिकल में पॉजिटिव्स भी होते हैं नेगेटिव्स। एनालिटिकल होता है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, दोनों चीजें मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ है, दोनों चीजों को कॉम्प्रिहेंसिवली तरीके से देख रहे हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसको अच्छे से एनालाइज कर रहे हो, दैट इज एनालिटिकल टोन। सो इट इंक्लूड्स क्रिटिकल टोन, बट क्रिटिकल टोन इज नॉट इक्विवेलेंट टू योर एनालिटिकल टोन इन टोटल। फॉल्ट फाइंडिंग बिल्कुल हो सकता है क्रिटिकल टोन में, जजमेंटल भी हो सकता है क्रिटिकल टोन में, राइट? थ्रू द पॉलिसी, दो द पॉलिसी aims at reform, it fails miserably in addressing the root cause of the unemployment. Bantering. Bantering is playful and teasing in a very friendly way. That is joking, teasing, and playful. He laughed, saying his friend's cooking could make anyone fast for a week, and they both burst out laughing. It's a kind of teasing in a friendly manner, right? In a playful, friendly manner. That is bantering. Remember. Jesting. Jesting is again, it's similar to bantering only, speaking humorously without any kind of seriousness. He claimed that he could pass exams just by looking at the question paper, long enough, drawing smiles and smiles all around. So this is jesting. Remember, jesting and the previous word was bantering. Both of them mean the same. कोई ऐसे ऐसे टोन आ जाए, यूजुअली यार मैंने सिनोनिम्स बता दिए कि कोई कोई पर्टिकुलर पैसेज हो जो ऐसी चीजों से डील कर रहा हो, ह्यूमरस मैनर से किसी को टीज वगैरह करना है नॉल। तो आप अगर मान लो जेस्टिंग और बैंटरिंग, मान लो जेस्टिंग लिखा हुआ है, राइट, और मेरे को बैंटरिंग याद है, तो इतना मेरे को याद होगा कि यार दोनों तो सिनोनिम्स थे ना, तो अब इसको एज सिनोनिम्स वाले तरीके से बिल्कुल याद रख लो। इतना याद रखना जो बोथ ऑफ देम बेसिकली रेफर टू बीइंग ह्यूमरस अबाउट थिंग्स, बट बैंटरिंग इज मोर अबाउट व्हेन यू आर टीजिंग समबडी and jesting is not exactly when you are teasing. So teasing वाले एलिमेंट जहां है वहां पर बैंटरिंग को करना, अदरवाइज बोथ ऑफ देम मीन ह्यूमरस। क्वेश्चन अगर पैसेज अगर ऐसा है जो बिल्कुल ही ह्यूमरस है, तो वो आपको जेस्टिंग बैंटरिंग नहीं देंगे, हो सकता है वो आपको जेस्टिंग भी दे दे और ह्यूमरस भी दे दे, तो उस केस में ह्यूमरस टिक करना। अगर मान लो पैसेज कोई टीजिंग वगैरह से रिलेटेड नहीं है। जोवियल, जोवियल इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, हमने वर्ड पढ़ा था यूफोरिक, यूफोरिक बिल्कुल इसका सिनोनिम है जोवियल का। I'm writing this euphoric. ठीक है, again, it's a kind of synonym of jovial only. Remember this. Light-hearted, merry, joyous. The hall echoed with laughter as stories and jokes flowed freely among the old companions. Next, jocular. अब देखो जो jocular tone है और जो jovial tone है, ये बच्चों को लगता है कि दोनों बिल्कुल सेम है, बट दोनों सेम नहीं है। जोवियल टोन होता है genuinely happiness. It means euphoric. It means elated. हमने वर्ड्स पढ़े हैं elated, ecstatic, etc. Overjoyed. लाइट हार्टेड, है ना?
जॉक्यूलर का मतलब होता है, जॉक्यूलर इज अम्यूजिंग, ह्यूमरस इन टोन, इट्स विटी, इट्स फनी, इट्स प्लेफुल। ठीक है, जैसे हमने वर्ड पढ़ा था जेस्टिंग, जेस्टिंग को आप कंसिडर कर लो एज अ सिनोनिम ऑफ जॉक्यूलर। ठीक है, बट आप चीज को रिमेम्बर कर देना, इसमें जो आपका टीजिंग वाला एलिमेंट है, टीजिंग वाला एलिमेंट नहीं आ रहा। जहां आपका टीजिंग वाला एलिमेंट आएगा वहां पर आप बैंटरिंग को प्रेफर करोगे। फाइन, आई थिंक मैंने क्लियर कर दी वाली चीज है। बट जोवियल एंड जॉक्यूलर है जो आने लायक है, जेस्टिंग बैंटरिंग पूछते नहीं है वैसे। द स्पीकर टर्न इवन द डल टॉपिक ऑफ टैक्सेशन इनटू सीरीज ऑफ अम्यूजिंग एंड अम्यूजिंग एनेक्डोट्स, दिस इज अ पार्ट ऑफ जॉक्यूलर। कवाइलिंग, कवाइलिंग होता है कि जब हम पेटी फॉल्ट्स को निकालते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वो मेजर चीजों को नहीं दिखा रहे, वो पेटी पेटी चीजों को निकाल कर दिखा रहे हैं। जैसे हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर पॉलिसी है जहां पर ऑथर क्या कर रहा है, वो मेजर चीजों पे बात नहीं कर रहा, वो छोटी छोटी चीजों के बारे में बात कर, छोटी छोटी, जैसे फुल स्टॉप नहीं लगा वहां पर, कॉमा नहीं लगा, क्योंकि कॉमा नहीं लगा, फुल स्टॉप नहीं लगा, आप वो उस चीजों के बारे में बात करो जो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। या फिर हो सकता है कि पॉलिसी को आना था 29 को, बट पॉलिसी को नोटिफाई होना था 29 को, बट पॉलिसी हुई नोटिफाई 30th को, और उस पर क्रिटिसाइज कर रहा है। आप बोलोगे कि यार ये तो फॉल्ट ही बहुत छोटी छोटी, इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। अगेन कीपिंग द सर्कमस्टांसेस अराउंड, कवाइलिंग टोन्स में यूज होगी। इट इज निट पिकिंग, कार्पिंग और फॉल्ट फाइंडिंग। सिनोनिम्स है, लर्न कर लो। इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग द ओवरऑल सक्सेस ही कंप्लेन्ड अबाउट द फॉन्ट साइज ऑफ द रिपोर्ट पेपर। Admonishing. Admonishing is when you're warning or scolding somebody gently, advising, reproving, cautioning. Let this be a reminder that shortcuts may save time but cost you your integrity. This is when you are just scolding or warning somebody gently. है ना, मैंने किसी को क्या करा, किसी को ना हेविली क्रिटिसाइज कर रही हूँ भाई, हेविली क्रिटिसाइज, वो तो क्रिटिकल टोन हो गई, राइट। बट मैं किसी को बस वार्न कर रही हूँ, थोड़ा सा बोल दिया मैंने यार गुस्से में उसको, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉन एज एडमॉनिशिंग। Buoyant, cheerful and optimistic, that is buoyant। इसमें आपका यूफोरिक टोन भी आ गया, इसमें आपका जोवियल टोन भी आ गया। बड़ा थोड़ा सा याद रखना, जब आपका ऑप्टिमिस्टिक आ गया ना तो थोड़ा सा मीनिंग बदल गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर पैसेज है जहां पर आपको लिखा हुआ है जोवियल, है ना, और लिखा हुआ है बोयंट, लेकिन पैसेज में जो एलिमेंट ऑफ ऑप्टिमिज्म भी है, ठीक है, तो आप बोयंट पे टिक करना, जॉक्यूलर पे टिक मत करना फिर। ठीक है, अगर पैसेज में आए वो दोनों खुशी वाले पैसेजेस है, हाँ, लेकिन वहां पर मान लो ऑप्टिमिस्टिक का नहीं है, मतलब सेंस आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि वहां पर कहीं ऑप्टिमिज्म है, जोवियल टिक कर देना। लेकिन मैं जब कोई क्वेश्चंस बता रही हूँ ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे वो जोवियल हो, चाहे वो जॉक्यूलर हो, राइट, चाहे वो जेस्टिंग हो, चाहे बैंटरिंग हो, चाहे बोयंट हो, अगर ऐसे ऑप्शन उन्होंने एक साथ दे देना, क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट बन जाएगा। क्योंकि लोगों को इससे मतलब नहीं पता होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बच्चों को अगर आप ये वीडियो देख के जा रहे हो तो आपको पता होगा, अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए, अगर मान लो आपको मीनिंग नहीं पता, एज ए नॉर्मल रैशनल पर्सन मेरे को मीनिंग नहीं पता बैंटरिंग और जेस्टिंग के बीच, मेरे को पता है दोनों ह्यूमरस है, बट मेरे को नहीं पता कि किधर टीजिंग होती है, टीजिंग वाला एलिमेंट बैंटरिंग में आता है, जेस्टिंग में नहीं आता, मेरे को नहीं पता, मैं क्वेश्चन गलत कर जाऊंगी उस केस में। तो क्वेश्चन का लेवल इससे बहुत हाई बन जाएगा अगर ऐसा आएगा तो, जोवियल एंड बोयंट की भाई, ऑप्टिमिज्म का लेवल भाई बोयंट में है, जोवियल में नहीं, मेरे को थोड़ी पता होगा। तो अगर पता कर लो क्वेश्चन आ गया तो यू बी सॉर्टेड। आई पर्सनली डू नॉट वांट अपने स्टूडेंट्स के लिए कि 24 और 25 जैसा पेपर है। अगर वैसा आ गया ना तो इट्स लाइक इट्स बैड, अगर ऐसा है तो, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी टू सिंपल फॉर एवरीबडी। और जिन्होंने ज्यादा पढ़ा होगा फिर उन चीजों में दिक्कत आ जाएगी, एंड दोज पीपल वुड बी लाइक शॉक्ड, और वहां चीजों में चीजें दिक्कत गलत हो जाएंगी। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा होगा, अगेन उनके लिए बहुत चीजें इजी हो जाएंगी। आई विल टू अंडरस्टैंड दैट वे। आई जेन्युइनली वांट पेपर टू बी 2023, लाइक 22, 21, 20, जो थे डिफिकल्ट वैसे वाले हैं, दैट इज मच बेटर। Upbeat, hopeful, and lively. Remember the synonyms. Despite challenges, author speaks of the nation ready to rise stronger, stronger than ever. ऑप्टिमिज्म का एलिमेंट भी आ रहा है इसमें, cheerfulness का भी एलिमेंट आ रहा है। Bemused. Bemused is when you're confused about something. Puzzled, bewildered, and perplexed. He watched the crowd arguing over coffee prices, wondering why people fought so passionately about such trivial things. This is bemused. यहाँ पे लिखा है confused yet amused. Amusing is also something which is थोड़ा सा element of hilariousness, थोड़ा सा element of funniness. तो confusion
प्लस थोड़ा सा फनी वाला एलिमेंट विल गिव यू बेम्यूज्ड। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा फनी वाला एलिमेंट ही था कि कॉफी प्राइसेस पर क्यों इतना लो कर रहे हैं, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ बेम्यूज्ड। ठीक है, लेकिन अगेन मैंने बोला पजल्ड, बिविल्डर्ड, परप्लेक्स्ड, इन सब में वो हंसने वाला ह्यूमरस वाला एलिमेंट नहीं आता। ठीक है, बट बेम्यूज में आता है। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन हाउ देर आस्किंग। अगर ऑथर कंफ्यूज है किसी चीज पर जो थोड़ी सी ह्यूमरस टाइप लगती है, बेम्यूज पर टिक कर देना, फिर पजल्ड पे टिक मत करना। देखिए अगर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर ऐसा होगा, क्योंकि मेजरली हम बेम्यूज को और पजल्ड को, बिविल्डर्ड, परप्लेक्स इंटायरली सिनोनिम्स मानते हैं, इंटायरली सिनोनिम्स। कोई अम्यूज्ड वाला एलिमेंट इधर नहीं आता। सो नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, डोंट वरी। अच्छा, एक चीज मेरे को बतानी थी। सीधा कोई पैसेज में ऑप्टिमिस्टिक टोन है, राइट? कोई पर्टिकुलर पैसेज है, चलो मान लो ये वाला पैसेज पे एंड हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं इंडिया में, डाइवर्सिटी है, पॉपुलेशन का है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो ऑप्टिमिस्टिक फिर भी ऑथर एक ऐसे टोन पर एंड कर रहा है अपने मैसेज को कि फिर भी हम एक साथ जाते हैं, फिर भी हमारी चीजें सक्सेसफुल होती हैं, फिर भी हम एक फेस्टिवल को धूमधाम से मनाते हैं, सारे फेस्टिवल्स को, फिर भी हम अब सब लोग एक साथ डाइवर्सिटी होते हुए भी प्यार से रहते हैं, सेम कॉलोनीज में रहते हैं। यहाँ पर ऑप्टिमिज्म आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आगे भी सब कुछ ठीक रहेगा जैसे अब तक ठीक होता है इंडिपेंडेंस से। दिस इज ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म इज रिफ्लेक्टेड थ्रू आउट द पैसेज। तो ऑप्टिमिस्टिक टोन इज अ सुपर इंपॉर्टेंट टोन। मतलब आई वुड से नथिंग कुड बी इंपॉर्टेंट देन ऑप्टिमिज्म। जनरली ये बहुत चांसेस है इसके आने के। अब से देखोगे 80 to 85% ऑप्टिमिज्म काफी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आप ऑप्टिमिज्म देखो। वेयर इज माई एनोटेटर? इसका एक वर्ड याद रख लो, सिनोनिम। आई एम राइटिंग दिस बड़े बड़े शब्दों में। ठीक है, मैं छोटे शब्दों में नहीं लिख रही हूँ, बड़े बड़े शब्दों में लिख रही हूँ। सैंग्विन। याद कर लो, इसको घोट के पी लो। इसको आ, अपने पिलो के नीचे रखकर सो जाओ। बट जो भी है इसके साथ कुछ ना कुछ तो करो, कुछ ना कुछ तो करना है। सैंग्विन। सैंग्विन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्टिमिज्म की जगह वो वर्ड दे देंगे सैंग्विन, ऑप्टिमिज्म नहीं देंगे। आधे बच्चों को मीनिंग नहीं पता। ये वीडियो देखकर जा रहा हो तो मीनिंग तो पता होगा, तो सैंग्विन पे टिक कर देना। वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक नथिंग कुड बी इंपॉर्टेंट देन दिस। ओके, देन आर दिस स्केप्टिकल। स्केप्टिकल मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यू आर dubious about it, है ना, you are doubting about it, you are unconvinced about it. The promises of instant change sound appealing, but history suggests that miracles rarely happen, they rarely last for long. ये skeptical है, you're doubtful about it. स्पेक्यूलेटिव। स्पेक्यूलेटिव है भाई, गेसेस है भाई, गेसेस पर काम चल रहा है, पॉसिबिलिटी पर काम चल रहा है, हाइपोथेटिकल कंजेक्चुरल चीजों पर काम चल रहा है, हाइपोथेटिकल कंजेक्चुरल। आप स्पेक्यूलेटिव टोन में इंटायरली इसके सिनोनिम्स ले सकते हो, नॉट थ्योरेटिकल पर से। थ्योरेटिकल हो सकता है जिस थ्योरी लिखी गई है, बट उस थ्योरी पर कोई गेसेस नहीं डाल रही है, तो दैट इज थ्योरेटिकल। तो इट्स काइंड ऑफ बट नॉट इंटायरली द सेम। Technology continues evolving at this pace, perhaps even emotions will be programmed one day. तो this is what, this is speculative tone. Remember, कुछ कुछ examples में words repeated हैं तो उसको ignore कर देना। मैं इसको टेलीग्राम पर डालूंगी, ठीक है। तो उसमें एडिट नहीं हो पाएगी, तो मैंने इसको ऐसे ही कर रखा हुआ है, बहुत बड़ी बन चुकी है ये पीपीटी। दिस इज स्पेक्यूलेटिव। अब आते फैक्चुअल। पिछली बार भी एक्सप्लेन कर दिया था, ऑब्जेक्टिव टोन, इंफॉर्मेटिव टोन, फैक्चुअल टोन, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नॉट ओपिनियंस, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टोन। फैक्चुअल, India's literacy rate stood at 77% in 2023, marking a steady increase from the previous census. Factual. Sympathy. Sympathy is feeling sorrow for others. देखो, बहुत तीनों वर्ड्स हैं आपके पास। आपके पास है सिंपथी, आपके पास है एम्पथी, और आपके पास है एपथी। ये तो है भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो इससे ऊपर इंपॉर्टेंट कुछ हो नहीं सकता। अब बोला कि मैम ने, आई थिंक ये तीसरी चौथी बार बोल रही है मैम क्लास में कि इंपॉर्टेंट इससे कुछ नहीं है, तो क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, जिन पर मैं ऐसे से आपको निशान बना के लिख रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोल रही हूँ, रिआइटरेट कर रही हूँ, तो कुछ सोच कर रही हूँ, ठीक है। तो सोच ही कर रही हूँ कि भाई जैसे ऑप्टिमिज्म, सैंग्विन, क्रिटिकल, सिंपैथी, एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है।
और वोकैबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू से एपथी यूजुअली इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट एपथी, एम्पथी और सिंपथी में डिफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो पता हो तो काफी चीजें सॉर्ट हो जाती है। ओके, सिंपथी। तो मेरा गला थोड़ा खराब है तो इसलिए आई एम ड्रिंकिंग वाटर अगेन एंड अगेन, एनीवे। ओके, सिंपथी इज व्हेन मेरे को किसी के लिए सॉरी फील हो रहा हो, किसी के सामने, किसी की पोजीशन देखकर, किसी की कंडीशन को देखकर। एम्पथी इज व्हेन जब मैं किसी के लिए सॉरोफुल फील कर रही हूँ, तब जब मैं उसको उसकी पोजीशन में अपने आप को रख कर देख रही हूँ। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते होगे, कीपिंग समबडी इज कीपिंग माई सेल्फ इन समवन एल्सेस शूज। ठीक है, उसको इंग्लिश इंग्लिश में शूज बोल देते हैं, क्योंकि हम मैं अगर किसी को मतलब किसी की पोजीशन में अपने आप को रख कर देखूं और सोचूं, दिस इज एम्पथेटिक फीलिंग। एपथी इज आई एम कंप्लीटली ओब्लीवियस। ओब्लीवियस मतलब कंप्लीटली इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट। मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा होता है ना, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा जो मेरे सामने हो रहा है। दैट इज एपथी। तो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी, एपथी एंड एम्पथी। इस पर ही बेस्ड टोन्स का भी मीनिंग निकलता है। कंपैशन, कंसर्न एंड पिटी, ये होता है मोस्ट रीडर्स विल मूव बाय द plight of the farmers struggling through drought. Empathy is when you are understanding and keeping yourself in someone else's shoes. Reading her story, one could almost feel the emptiness. One could almost feel the emptiness. यहाँ से पता चल रहा है भाई शूज में हो उस बंदे के, और losing a loved one in silence. Uh, many readers were moved by the plight. It's just that you were felt, but one could almost feel. वो जो फीलिंग है ना, एक तो होता है कि people were moved away, मतलब वो बह गए उसमें, बट फीलिंग इज आपने फील करा है। सो इट इज व्हेन कीपिंग समवन योरसेल्फ इन समवन एल्सेस शूज, दैट इज एम्पैथी। दे ओके, and then you have apathy is lack of concern, feel indifference, detachment. City walk past the beggar, eyes fixed on screens, hearts unmoved. बेगर सामने चल रहा, कोई फीलिंग नहीं है ना। मेरे को एम्पथी है कि क्या होता अगर उसकी जगह कोई और होता, ना मेरे को सिंपैथी है कि मैं उससे भाई मैं मूव्ड अवे हो रही हूँ। मेरे को बस एम्पैथी है भाई, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आई एम जस्ट ईटिंग, मेरे पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा कि मेरे सामने से कौन जा। सिनिकल, सिनिकल इज द मोस्ट रिपीटेड टोन इन मॉक्स। अब मॉक्स का मैं क्या बोलूं, एग्जाम पास में आ रहा है, मॉक्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, previous year papers are important. Distrusting human motives or sincerity, that is cynical. Cynical tone is when you are heavily criticizing human values, when you have lost trust in human beings, when you have lost trust in human values, that is known as a cynical tone. So it is about being skeptical, pessimistic, distrustful, distrustful. So pessimism is again opposite of sanguine. Sanguine क्या है, common में बताना। He claimed that every charity eventually turns into a business and goodness is just money making. Human value जो philanthropy human value होती है, उसको आपने बोल दिया कि अब वो कुछ नहीं है, वो eventually business में turn हो जाती है। मैंने फेथ खो दिया human values में, that is cynical. Disparaging is showing disrespect. तो इसका हमने एक और वर्ड करा था, disdainful is a similar word to that of disparaging. Belittling somebody, demeaning somebody, और scornful, scornful तो लिखा भी हुआ था उधर। तो remember ये सारे के सारे words very very important for vocabulary point of view. She dismissed the young artist work as childish scribbles unworthy of attention. This is an example of disparaging. In the same way, derisive is when you are mocking or ridiculing, मतलब heavily तरीके से। मैंने sneering, scornful, contemptuous, भाई बहुत बुरी तरीके से मैं किसी को बोल रही हूँ, बहुत बुरी तरीके से किसी का क्रिटिसाइज कर रही हूँ, मजाक उड़ा रही हूँ, उसको नीचा दिखा रही हूँ, ये सब एलिमेंट्स मिक्स हो जाते हैं, दिस इज नॉट अ डेराइसिव। ओके, याद रखना डिराइसिव और डिसाइसिव में फर्क होता है, डिफरेंस है। तो डिसाइसिव इज ऑन पॉइंट, हमने पढ़ा था, लिखा भी होता उधर इंक्विजिटिव टोन में। ठीक है, दैट इज सॉरी इनसाइड व्हेन यू आर कंप्लीटली ऑन पॉइंट, हमने वो जो पढ़ा था वो वाला टोन, बीइंग ऑन पॉइंट, राइट, या फिर डिसाइसिव, दैट इज व्हेन यू आर इंसाइसिव, राइट। बट डिराइसिव इज कंप्लीटली डिफरेंट। डिराइसिव इज रेडिक्यूलिंग समबडी, बहुत बुरी तरीके से किसी को मॉक करना। राइटर मॉक्स दोस हु स्टिल बिलीव लक नॉट एफर्ट शेप्स डेस्टिनी। Contemplative is thinking, is just thinking, is thoughtful और रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा, रिफ्लेक्टिव होता है पास्ट एक्शंस के बारे में बात करना, या फिर इंट्रोस्पेक्शन। डीपली थॉटफुल हो सकता है, किसी भी एस्पेक्ट में मैं सोच सकती हूँ यार, कुछ भी मैं सोच सकती हूँ, दैट इज कॉन्टेम्पलेटिव। आई एम जस्ट थिंकिंग
That is contemplative. As the sun dipped below the horizon, he wondered if ambition ever truly brings peace. ठीक है, तो this is pensive, meditative, reflective. रेवरेंट होता है बहुत रिस्पेक्टफुल। ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्लास में पूछा जाता है रेवरेंट वाला पैसेज। तो उसमें पूछा जाता है, मान लो कोई डिवाउट एडमायरिंग रिस्पेक्टफुल पर्टिकुलर पैसेज आ जाएगा, मान लो महात्मा गांधी पर यहाँ पर है विद वर्ड्स, है ना, तो यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें चल रही है, रेवरेंट हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर गॉड के बारे में, किसी पर्टिकुलर डिवाइन बीइंग के बारे में, है ना, या किसी पर्टिकुलर ऐसा फिगर के बारे में जो पब्लिकली और रिवर करा जाता है, मतलब रिस्पेक्ट करा जाता है, उस केस में बहुत इज्जत से उसके बारे में बात हो रही है, अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट के साथ वो रेवरेंट हो जाएगा। पेटर्नाइजिंग, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग क्लैट में टोन्स ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी, एलिट में हो सकता है कि थोड़ी सी आए, दो ऑप्शंस में घुसो, बट क्लैट में नहीं आएगी। आई थिंक ये नंबरिंग में एक मिस्टेक हो गई, 23 लिखा हुआ है इधर, दिस इज गोइंग टू बी 71 टोन्स देन। पेटर्नाइजिंग 46, ठीक है। पेट्रनाइजिंग इज काइंड ऑफ ट्रीटिंग पीपल इंफीरियर। जब इंफीरियर वाली चीज आ जाती है ना, रेडिकुलिंग मॉकिंग तो ठीक है, ठीक है, डिस्पैरेजिंग डिसडेनफुल ठीक है, बट मैं किसी को जो नीचा दिखा रही हूँ, दैट इज पेट्रनाइजिंग। कॉन्डेसेंडिंग भी होता है, कॉन्डेसेंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सुपीरियर, स्नॉबिश, ओ यू स्पीक इंग्लिश, यू बिलोंग टू स्मॉल टाउन, दैट इज पेट्रनाइजिंग। फेसेशियस होता है जब सीरियस इश्यूज को ह्यूमर के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, इसको फ्लिपेंट विटी जोकिंग भी बोलते हैं। फ्लिपेंट रिमेंबर कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम, फ्लिपेंट एंड फिसेशियस। देखो यहाँ पर होता है कि जैसे मान लो ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक जैम में लोगों का दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन एक बंदा बोल रहा है कि हो सकता है ट्रैफिक जैम एक पर्टिकुलर तरीका हो नेचर का, दो लोग को मिलाने का, या फिर उनके या ताकि वो टाइम स्पेंड करें। एक सीरियस इशू में आप ह्यूमर को बुला रहे हो, आप अनसीरियस टॉक्स कर रहे हो सीरियस मामले पे, दैट इज फसेशियस और फ्लिपेंट। vitriolic. Okay, vitriolic is bitterly, harsh, critical, scathing, venomous, bitter. This is also some kind of tone जो mock करना, किसी को ridicule करना, it's vitriolic, ठीक है। article attacks the opposition, भाई बहुत बुरी तरह से प्रयोग कर रहे हो ना, बहुत बुरी तरह। criticize, mock नहीं कर रहे, criticize कर रहे हो, vitriolic tone। vitriol का मतलब ही जहर होता है, again। असर्बिक भी जहर होता है, तो असर्बिक भी कर सकते हो। असर्बिक इज एसिडिक व्हिच इज आल्सो काइंड ऑफ वेरी बिटरली क्रिटिसाइजिंग समबडी। बेलिजरेंट, अग्रेसिव एंड आर्गुमेंटिव। भाई बेलिजरेंट ने यूजुअली आर्मी, आप डिक्शनरी खोलोगे, आप वर्ड पार में डीसी खोलोगे, आप कोई और बुक खोलोगे, बेलिजरेंट, बेली, बी लिटिल, इन सबको आप बेलिजरेंट ने यूजुअली मिलिट्रीज वगैरह के लिए यूज करते हो। अग्रेसिव एंड आर्गुमेंटेटिव, तो आप देखोगे हॉस्टाइल, कॉम्बैटिव, कॉन्फ्रंटेशनल, तो अब ये आपको ज्यादा बेलिजरेंट, इंस्टेड ऑफ आंसरिंग कामली स्लैम्ड द टेबल एंड डेयर्ड एनीवन टू डिसएग्री। ठीक है, तो दिस इज यू आर बीइंग वेरी एरोगेंट, नॉट एरोगेंट, सॉरी, सॉरी, but you are being aggressive and argumentative about something, that is belligerent, you are like very forceful। अब बोलोगे मैम आपने बोला सीवरली क्रिटिसाइजिंग वाली टोन्स पढ़ रहे हैं पीछे, वेट्रियोलिक मैम हमने पढ़ी, हमने पेट्रनाइजिंग पढ़ी मैम, कॉन्टेम्पलेटिव नहीं डिराइजिव पढ़ी मैम। मैम ये तो काफी ज्यादा ओवरलैप हो रही है, तो बेटा परेशान मत हो, क्लैट में जब आपसे पूछा जाएगा ना, हम्म, तो इट वुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू वुड बी इजी, इट वुड बी इजी फॉर यू टू डू, राइट। वो बेलिजरेंट एलिट में पूछा गया है, मतलब एलिट का जो प्रीवियस ईयर खोल के देखा था, अभी आई एम प्रिपेयरिंग समथिंग फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर एलिट, वहां पर बेलिजरेंट इज समथिंग जो रिपीट हुआ था, तो बेलिजरेंट को भी आराम से देख लेना फॉर एलिट। तो आप एक चीज को याद रखो, मतलब अगेन अगर आपको रूट वर्ड्स पता हो ना, जैसे बेली, है ना, ये तो बी लिटिल, अगर आपको वो बी वाले वो वर्ड्स पता हो, उसका फिर रूट वर्ड आपको पता है, तो रूट वर्ड से काफी वर्ड्स निकल जाते हैं, बेलिजरेंट, बी लिटिल। आई थिंक फॉर कंपेरेटिव एग्जाम किसी ना किसी ने जिंदगी में एक बार तो वर्ड पार मेड इजी पढ़ी होगी, राइट। फॉर क्लैट ऑल्सो कभी ना कभी तो पढ़ी होगी, इतना मैं मान रही हूँ। नहीं पढ़ी तो डोंट रीड इट नाउ, जस्ट ट्रस्ट ऑन द न्यूज पेपर्स दैट यू रीडिंग, उससे भी मतलब मेरी रीडिंग अ बुक, तो उसमें भी आप कितने ही याद रख पाते हो। कुछ बच्चे रिवाइज करते हैं जनरली वर्ड पार मेड इजी, इट्स, आई एम नॉट श्योर वेदर दे इवन रिवाइज, इट्स अ काइंड ऑफ एडवाइस व्हिच इज गिवन टू स्टूडेंट्स। मैं नहीं दूंगी एडवाइस, मैं बोलूंगी वन एक बार उसको रीड कर लो, है ना, फिर थोड़ा सा रिवाइज कर लो, फिर वो न्यूज़पेपर में वर्ड्स दिख जाते हैं, दैट इज द राइट वे टू गो। अगर इस बुक को रीड करने का ना, इट्स लाइक मैं दोबारा से, इट्स वेरी बोरिंग
बुक्स को पढ़ना है, फिर फॉर एनी बुक फॉर दैट मैटर, एनी बुक फॉर दैट मैटर जो वोकैबलरी सिखा रही है उसमें दिक्कत आ रही है। इवन नोट्स फॉर दैट मैटर, नोट्स तो यार रिवाइज करो अगर वोकैबलरी है, कोचिंग पढ़ा रही है या फिर पढ़ रहे हो कहीं से तो एक वर्ड्स ना क्लैट में ना वो आराम से एलिमिनेट हो जाएंगे टोन्स, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। बेलिजरेंट ज्यादा हाई लेवल का होता है। satirical is using humor to criticize, जैसे through exaggerated praise, आप praise of corrupt leaders, the author exposes their incompetence और incompetence, जैसे मैंने praise कर दी, तो praise of corrupt leaders, यार पार्टीज बहुत ज्यादा होस्ट करते हैं, इनके पास पार्टीज होस्ट करने का टाइम है, इनके पास अपने लिए महंगी महंगी चीजें लेने का टाइम है, अपने बच्चों को बाहर फॉरेन एजुकेशन देने का टाइम है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं ह्यूमर लेकर उनको क्रिटिसाइज कर रही हूँ, मैं प्रेज से क्रिटिसाइज कर रही हूँ। दिस इज सटायरिकल टोन, ठीक है, जहां पर किसी और चीज का सहारा लेकर, आयरनी इज व्हाट, कॉन्ट्रडिक्टिव, कॉन्ट्रडिक्शन, राइट, ह्यूमर इज व्हाट, फनी वाला एलिमेंट, वो चीजें लेकर मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रही हूँ, दिस इज सटायरिकल। जैसे मैं किसी को क्रिटिसाइज कर, आज आप बहुत जल्दी आ गए, आप जल्दी नहीं आए, आप लेट आए हो, दिस इज सटायरिकल, ठीक है। मॉकिंग, आयरॉनिक, फाइटिंग। फ्लिपेंट, लैगिंग सीरियसनेस अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, facetious tone पढ़ी है अभी अभी हमने। irreverent, reverent का opposite, when asked about rising prices he laughed and said at least inflation keeps the economy moving। तो अब सीरियस मैटर है इन्फ्लेशन के बारे में, अब अनसीरियस बारे में बात करो कि इकोनॉमी को कहीं ना कहीं तरीके से मूव करती है, विच इज रॉन्ग। ओके फाइन। अब नेक्स्ट जो लॉट है बाकी के 20 टोन्स का, वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। टिल देन, stay tuned, do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel.